Okay, good morning students, welcome back. So, in part 1 of real numbers, we have studied about the LCM, HCF, different types of numbers, that is whole numbers, natural numbers, etc. Right? And the most important fundamental theorem of arithmetic. So, in the part 2 of this chapter, we are going to study the relationship between the LCM and HCF with the help of one important formula and the theorem 1.2, which is also the second important part of this chapter, and how to prove the irrational number, right, with the help of the contradictory method, right. So let's start with our lectures. So first, what we are going to study is first relationship between LCM and HCF. Okay. Second is theorem 1.2, which is also second most important part of this, and third one is to prove root 2, root 3, root 5, etc. irrational. Okay, so let's start with our lecture. So first we are going to study the relationship between the LCM and HCF with the help of a formula. So we have formula LCM of two numbers, that is, let's say one number is A and second number is B. LCM of two numbers into HCF of two numbers equals to product of two numbers. Product of two numbers, or you can write it as A into B. Okay. So in the previous video we have studied the simple part, that is LCM, HCF, with the help to find the LCM and HCF with the help of the prime factorization method, right. So here with the help of this formula, the procedure or the method will be easy. So LCM and HCF of two numbers into, or we can you can see here, that is LCM and HCF of two numbers, right. LCM of two numbers into HCF of two numbers is equals to the product of two numbers. Okay, product of two numbers in the sense कि जो भी दो numbers हमें given है उनका simply हमें multiplication करना है. So let's take an example. Okay, एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो कौन सा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम स्टार्ट करते हैं छोटे नंबर्स से, राइट. 2 डिजिट नंबर्स हम स्टार्ट करते हैं. एग्जाम्पल, टू नंबर्स है हमारे पास, लेट्स से 32 एंड 40. ये दो हमारे पास नंबर्स है. सबसे पहले हम यहाँ पे LCM और HCF फाइंड करेंगे with the help of which method? Prime factorization method. Okay, so let's find the LCM. First we are going to find the HCF. So 2 into 16, 16 2s are 32, 2 into 8, 2 4s are 2 2s are 2 1, and 40. So 2 20s are 2 10s are 2 5s are 5 1. Okay, this is the HCF of two numbers, that is 32 and 40. Now HCF हम फाइंड करें तो HCF क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले तो हमें 32 एंड 40 के फैक्टर्स लिखने पड़ेंगे. सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 32? 2 into 2 into 2 into 2 into 2. And what are the factors of 40? 2 into 2 into 2 into 5. Okay, these are the factors. Now we are going to find the common factor in that, right? Simple. Okay, this much are the common factors of 32 and 40. So HCF is 2 into 2 into 2, which is equals to 8. So HCF of these two numbers is 8. Now we are going to find the LCM of two numbers. HCF हमें मिल गया है, क्या है बेटा यहाँ पे HCF? That is the 8. 8 is the HCF of two numbers. Okay. Now LCM, same, which method? Prime factorization method. So 2 into 16, 2 into 20,
2 8s are 2 10s are 2 4s are 2 5s are 2 2s are 2 5 2 1s are 2. It will remain as it is now 5. Okay, so LCM so what will be the LCM? So LCM of 32 and 40. Okay, so let's see what is the LCM. So first we will write the factors. 2 into 2, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5, right? Say this, 2 into 2 into 2 into 2 into 2, which is into 5. So 2 raised to 5 is 32. Sorry, yes, 2 raised to 5 is 32. So 32 into 5, 160. So LCM of two numbers, LCM of 32 and 40 will be 160. Okay. Now we have both LCM and HCF. सबसे पहले हम यहाँ पे वो हमारी जो फॉर्मूला थी वो फिर से एक बार मेंशन कर लेते हैं. दैट इज LCM ऑफ टू नंबर्स. हमने वहां पे क्या लिखा था? जस्ट इन द फॉर्मूला A एंड B. हमारे कौन से दो नंबर्स है यहाँ पे? 32 एंड 40 into HCF of two numbers. Equal to that product of two numbers. So 32 into 40, right? So what is the LCM of two numbers? 160. And what is the HCF of two numbers? देखो हमने यहाँ पे HCF फाइंड किया था ना. What is the HCF? 8. So we are going to write it here as 8, which is equals to 32 into 40. Okay. So 16 into 8. So we can here LHS is equals to RHS. जब भी हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों क्या आएगी? सेम आएगी. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1280. That is 32 into 40 will be 1280. Okay, and 160 into 8 also be 1280. Here LHS is equals to RHS. यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू 1280 आई और राइट हैंड साइड की भी वैल्यू जो है वो 1280 आई. So here we have verified that 32 and 40, LCM of 32 and 40, LCM and HCF of 32 and 40 is verified with the help of our formula, that is LCM of two numbers into LCF of two numbers equals to product of two numbers. So this is the formula, right? LCM, HCF and the product of two numbers. So यहाँ पे हमें different form में examples दे सकते हैं. जैसे कि कैसे example दे सकते हैं कि कोई example में हमें LCM given होगा. क्या given होगा बेटा? LCM will be given. We have to find the HCF. Okay? LCM डायरेक्टली गिवन होगा और HCF हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा. और दो नंबर्स A is equals to and B is equals to, ये दो नंबर्स हमें ऑलरेडी गिवन होंगे. लेट्स से हम हमारा एग्जांपल ही कंटिन्यू करते हैं कि 32 और 40, A and B is given and HCF is given. So we need to find the LCM. Same formula, LCM of two numbers into HCF of two numbers equals to product of two numbers. Okay, right? So what is the LCM? LCM here, LCM needs to be find here. So HCF is 8, 32 into 40. So here 8 is in the multiplication. On the right hand side it will be in the division. So 32 into 40 upon 8. 8 4 the 32. 4 into 40 will be 160. So our LCM will be 160, जैसा हमने इधर देखा था, राइट? ये रहा हमारा LCM मिला था ना 160. So it is verified कि हमने ये जो पूरी मेथड की वो which is correct.
सो जब भी अगर आपको डायरेक्टली एलसीएम ऑफ टू नंबर्स और एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स गिवन हो तो हम ये वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं बेटा? इधर हम देखो, ये रही, ये रही हमारी फॉर्मूला। द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स का वेरिफिकेशन के लिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि सिंपल दो नंबर्स गिवन होंगे, दैट इज ए, नंबर ए एंड नंबर बी, उसका आपको एलसीएम फाइंड करना होगा, एचसीएफ फाइंड करना होगा, एंड हियर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। सो वेरीफाई कैसे करना है? अभी हमने वेरीफाई किया, तो वेरीफाई में क्या होना चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, सो अवर सम or our method is correct. Okay, so this is the most important formula. So with the help, ये फॉर्मूला की हेल्प से या फिर ये फॉर्मूला जो है वो उसके जो क्वेश्चंस है वो 1 मार्क 2 मार्क्स के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशंस में। 1 मार्क के लिए भी पूछे जाते हैं और 2 मार्क्स के लिए भी पूछे जाते हैं, राइट। सो 1 मार्क में सिर्फ आपको सिंपल की एलसीएम दे दिया होगा और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दे दिया होगा, राइट। तो आपको सिर्फ एलसीएम को इससे डिवाइड कर देना है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स से और एचसीएफ फाइंड करना है, दैट इज 1 मार्क। डू हैज डायरेक्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो 1 मार्क के लिए पूछे जाएंगे। और अगर 2 मार्क क्वेश्चन के लिए होगा तो 2 मार्क क्वेश्चन में आपको कैसे क्वेश्चंस होंगे बेटा कि एलसीएम एंड एचसीएफ यू नीड टू फाइंड इट, राइट, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और उसके बाद ये वाली फॉर्मूला से आपको उसको वेरीफाई करना पड़ेगा कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, क्लियर इतना? सो अभी तक हमने हमारे चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ी, स्टार्टिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को हमने कैटेगराइज किया था, 2 चीजों में कैटेगराइज किया था। कौन सी 2 चीजों में हमने रियल नंबर्स को कैटेगराइज किया था? रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर्स, राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो रियल नंबर्स, इसको हमने कैटेगराइज किया था 2 चीजों में, रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। 2 चीजों में कैटेगराइज किया है ना, रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। नाउ रैशनल नंबर्स के बारे में हमने बहुत सारे डिस्कशन किए थे इन द प्रीवियस पार्ट। So in this part, our main focus is on the irrational numbers and related to its questions. उसके जो questions है उसकी related, right? तो irrational numbers theorem 1.2 and its questions. So irrational numbers, revisiting irrational numbers. So we can write it, the formula of it or definition. What are irrational numbers? The numbers which cannot be expressed in P by Q फॉर्म। ऐसे नंबर्स जिनको हम P by Q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते और रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। P by Q फॉर्म इन द सेंस की फ्रैक्शन फॉर्म, देन दिस नंबर आर द इरेशनल नंबर्स। ओके, सो हमने एग्जांपल्स भी लिए थे। हमने एक मेन एग्जांपल लिया था पाई। कौन सा एग्जांपल लिया था हमने? उसका पाई, कि ये जो पाई है वो इरेशनल कैसे हो सकता है। पाई की हमारे पास 2 वैल्यूज है, 22/7 और 3.14। दिस 2 वैल्यूज दैट इज 22/7 और 3.14 वो हमारी कन्वीनियंस के लिए है। अगर हम 22/7 का डेसिमल एक्सपांशन करें तो हमारा जो डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग आएगा। डेसिमल एक्सपांशन कैसा आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इन द सेंस कि हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आएगा, और नॉन रिकरिंग मतलब कि वो इनफाइनाइट टाइम्स तक, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक डिफरेंट वैल्यूज आती रहेगी, कोई भी पैटर्न, स्पेसिफिक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म नहीं होगी। सो दैट्स व्हाई आवर पाई इज इरेशनल नंबर। 3.14 and 22/7 the values are written for our convenience to solve the questions, nothing else. और कौन कौन से हमारे इरेशनल नंबर्स आ जाएंगे बेटा? ओके, कौन कौन से हमारे इरेशनल नंबर्स आ जाएंगे? √2, √3,
√5, √7, √9 लिख सकते हैं? नहीं। क्यों हम यहाँ पे √9 नहीं लिख सकते? बिकॉज जो √9 है, इट हियर द 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3, तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर है वो इरेशनल नहीं हो सकते, राइट? कौन कौन से? तो 4, 9, 25, 16, उसके बाद कौन कौन सा आ जाएगा? 64, 81, 100 एक्सेट्रा। ये सारे कैसे नंबर्स है बेटा? इरेशनल नंबर, सॉरी, ये सारे कैसे नंबर्स है? परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये जितने भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर अवेलेबल है वो इरेशनल नहीं हो सकते। बाकी अब मैं बोलूं कि √15, यस इट इज अ इरेशनल नंबर। क्यों? जब भी हम √15 का एक्सपांशन करेंगे और 15/1 का डेसिमल एक्सपांशन करेंगे तो हमारा जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रिकरिंग भी होगा। सो दैट्स व्हाई √15 इज अवर इरेशनल numbers. Clear beta irrational numbers का concept? So moving forward, theorem 1.2. So here in theorem 1.2 दो चीजें हैं हमारे पास, एक तो प्राइम नंबर एंड एक पॉजिटिव इंटीजर। इसकी हेल्प से हमें हमारा जो कोई भी इरेशनल नंबर है उसको कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से उसको इरेशनल प्रूव करना है। सो दो चीजें हैं, तो प्राइम नंबर इज डिनोटेड बाय p एंड कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स को हमने a से डिनोट कर लिया है, राइट? सो इफ अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2, इफ एनी प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर, मतलब कोई भी प्राइम नंबर p है वो a स्क्वायर डिवाइड करता है, देन दैट प्राइम नंबर ऑल्सो डिवाइड्स a। हियर a इज द पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि जो a है वो पॉजिटिव इंटीजर्स ही हो सकता है, यहाँ पे हम नेगेटिव इंटीजर्स कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2, इफ एनी प्राइम नंबर p, कोई भी प्राइम नंबर है हमारे पास, वो अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो वही प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। हमारा प्राइम नंबर है 5 और हमारा a स्क्वायर है 625। ओके, हमारा जो a स्क्वायर है वो 625 है। तो ये जो दिस इज द p, this is the p and this is the a square, right? अगर phi जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है और p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ये जो p है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो अगर phi जो है वो 625 को डिवाइड करता है, तो 625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो 625 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 25। तो ये जो 5 है वो 25 को भी डिवाइड करेगा, मतलब उसका वो फैक्टर हो सकता है। सिंपल, इतना याद रखना कि अकॉर्डिंग हियर इन थ्योरम 1.2, कोई भी अगर प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, कोई भी प्राइम नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन सेम प्राइम नंबर वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है? अब यहाँ पे प्राइम नंबर्स कोई भी हो सकता है, पर हमारे पास a, दैट इज a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एक कंडीशन दे दी है कि a हमेशा कैसा इंटीजर होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए, दैट इज नेचुरल नंबर्स होने चाहिए सारे, राइट? दैट इज स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप टू द इंफिनिटी। ये है एक हमारी मेन कंडीशन है, तो ही ये थ्योरम 1.2 हम आगे वेरीफाई कर सकते हैं इन आवर एग्जांपल्स और क्वेश्चंस, राइट? क्लियर? कि एक बार फिर से कि थ्योरम 1.2, इफ एनी प्राइम नंबर p, हमें यहाँ पे प्राइम नंबर p गिवन है, तो कोई भी प्राइम नंबर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो वो सेम प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया कि p है वो प्राइम नंबर मेरा 5 है और यहाँ पे जो मेरा a स्क्वायर है वो मेरा क्या है? 625 है। एंड अगर a स्क्वायर मेरा 625 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा मेरी? a की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज 25। सो अगर 5 625 को डिवाइड करता है तो 5 विल ऑल्सो डिवाइड 25। क्लियर?
सो मूविंग फॉरवर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जिसे हम बोल सकते हैं, टू प्रूव √2, √3, √5, √7 etc. इरेशनल। और हम जो मेथड यूज करेंगे यहाँ पे वो कौन सी मेथड होगी? कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। कौन सी मेथड यूज करेंगे बेटा? इधर हम कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करेंगे, ठीक है, मतलब इन ऑपोजिट। सो अब यहाँ पे हमारे पास नंबर्स है √2, √3, √5, √7। ओके, सो लेट अस start our question. The most important thing, it is asked for 3 marks in your examinations. This is from this chapter, this questions ki prove this number irrational, prove that number irrational are the frequently asked questions in your examination, right? So it will be asked simply ki prove √3 is irrational. प्रूव करो कि जो √3 है वो हमारा कैसा है? इरेशनल नंबर है, ठीक है। क्या करना है? √3 को इरेशनल प्रूव करना है, तो हमने मेथड कौन सी यूज करनी है? यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज करनी है। कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड मतलब कि उसको अपोजिट मेथड यूज करनी है, तो इरेशनल का अपोजिट क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर्स। ओके, सो स्टार्टिंग, लेट अस assume that √3 is rational, ठीक है। क्या यूज कर अज्यूम करना है कि खुद अज्यूम कर लो कि जो √3 है वो रैशनल है। कौन सी मेथड है? कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड है ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? √3 को रैशनली अज्यूम करना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो लेट अस अज्यूम √3 इज रैशनल। अगर √3 रैशनल है, सो √3 is equals to P upon Q, राइट? क्यों मैंने P upon Q के फॉर्म में लिखा? क्योंकि हमने अज्यूम किया है ना, कंसिडर किया है कि जो हमारा √3 है वो कैसा है? रैशनल नंबर है, ठीक है। अगर रैशनल नंबर है तो √3 कैन बी रिटन एज P and Q। रैशनल नंबर की डेफिनेशन से हमें पता है कि उनको हम P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। P and Q कैसे है? इंटीजर्स है, राइट, और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे P and Q तो इंटीजर्स है, पर P and Q आर को-प्राइम। P and Q आर को-प्राइम, ये याद रखना पड़ेगा, को-प्राइम, ठीक है। कैसे है वो को-प्राइम? को-प्राइम मतलब ऐसे दो नंबर्स जिनका फैक्टर्स क्या होना चाहिए? ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? 1। कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, उसके अलावा कोई भी फैक्टर्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। सो कंटिन्यू नाउ, ये जो इक्वेशन है इसको हम स्टार कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब ये जो स्टार वाली इक्वेशन है हम क्या करेंगे? उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो √3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू P अपॉन Q होल स्क्वायर, ओके। तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3, और इन दोनों के स्क्वायर में P² अपॉन Q स्क्वायर। सो अब ये जो Q स्क्वायर है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सो 3Q² इज इक्वल्स टू P², ओके। 3Q² इज इक्वल्स टू P²। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट ले लेते हैं, उसके बाद हम हमारे बाकी की इक्वेशंस को नेम देंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 we can say that 3 divides P²। ये जो 3 है अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर दे तो यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हम क्या कह सकते हैं? जो 3 है वो P² को डिवाइड करेगा,
तो सेम प्राइम नंबर 3 डिवाइड्स p। ओके, सेम जो प्राइम नंबर 3 है वो p को भी क्या करेगा बेटा, डिवाइड करेगा। तो अकॉर्डिंग टू विच थ्योरम, अभी हमने वो थ्योरम समझा था, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2, है ना। कोई भी प्राइम नंबर अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही सेम प्राइम नंबर a को भी डिवाइड करेगा। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट 3 डिवाइड्स p स्क्वायर, सो 3 also divides p। clear? Now let us consider p is equals to 3c। ये एक नया assumption है, एक नया कंसिडर किया है फॉर द q। हमने यहाँ तक क्या देखा कि जो 3 है वो p स्क्वायर को भी डिवाइड करता है और ये जो 3 है वो p को भी डिवाइड करता है। अब हमें सेम चीज q के लिए भी करनी है, तो हमने क्या किया, जो p है वो क्या हो जाएगा 3c। अब ये जो p की वैल्यू है वो हम इधर रखेंगे, कौन सी इक्वेशन में, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ 3 इन इक्वेशन नंबर 1। अब 3 में हम क्या करेंगे, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, q की जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू, q की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे, p की वैल्यू, सॉरी जो हमारी इक्वेशन है उसमें हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे बेटा, इक्वेशन कौन सी है देखो, 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, सो 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने p को क्या कंसिडर किया है, 3c कंसिडर किया है, क्या कंसिडर किया है 3c, तो p की जगह क्या लिखेंगे हम 3c होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, सो 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर हो गया। अब so therefore q square is equals to 9c square upon 3। यहाँ पे जो 3 मल्टीप्लीकेशन में है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो इट विल बी इन द डिवीजन, सो q square is equals to 3c square और therefore c square is equals to q square upon 3। ये जो 3 है वो इस तरफ शिफ्ट हो गया। ओके, so this will be equation number 2। so from equation 2 we can say that 3 divides q square। ओके, ये जो 3 है वो q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। सिमिलरली with the help of theorem 1.2 we can also say that 3 divides q, राइट। हम ये कह सकते हैं जो 3 है वो q को भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे हम रीजन में लिख सकते हैं थ्योरम 1.2। कौन सा थ्योरम, थ्योरम 1.2। सो अगर 3 q स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, अगर 3 q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, जो 3 है वो q को भी डिवाइड करेगा, राइट। सो फ्रॉम द इम्पोर्टेंट पार्ट, फ्रॉम equation first and second we have seen that 3 is a common factor of, from this we can say that 3 is a common factor of both p and q। जो 3 है वो कॉमन फैक्टर है p और q का, राइट। 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q इज 3। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको सर्कल करना है, जो करना है वो उससे हम याद कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इतना कर सकते हैं। पर हमने तो अजम्पशन किया था ना कि जो रूट 3 है वो कैसा है, हमारा रैशनल है, और रूट 3 अगर हमारा रैशनल है तो रूट 3 को हम कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा, p बाई क्यू फॉर्म में।
और यहाँ पे हमने एक टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई की थी। कौन सी टर्म एंड कंडीशन अप्लाई की थी कि जो P और Q है वो कैसे नंबर्स है, हमारे को प्राइम है। कैसे नंबर्स है, को प्राइम। को प्राइम मतलब कॉमन फैक्टर क्या आना चाहिए, 1, उसके अलावा कोई फैक्टर इधर होना नहीं चाहिए। पर क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, विद दिस मेथड जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना। कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3। सो फ्रॉम above we can say that our assumption is incorrect। क्या अज्यूम किया था, our assumption is incorrect। क्या अज्यूम किया था कि जो √3 है वो कैसा है बेटा, हमारा रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर था तो पी बाई क्यू फॉर्म में हमने उसको रिप्रेजेंट किया था, और पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, और हमने टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी थी कि पी एंड क्यू वो कैसे नंबर्स होने चाहिए, को प्राइम नंबर्स होने चाहिए, राइट। को प्राइम इन द सेंस कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। पर यहाँ पे हमने विद दिस मेथड, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड, हमने देखा कि जो पी और क्यू उसका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, राइट। 3 हो रहा है तो अवर जो अजम्पशन था कि √3 इज रैशनल, दैट विल बी इनकरेक्ट। सो फ्रॉम अबव वी कैन से दैट अवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे √3 is irrational number। ठीक है, जो √3 है वो हमारा क्या आ गया, irrational number, that is hence proved। ओके, क्लियर, समझ में आया। सिंपल चीज है बेटा ये, कि हमने अब कोई भी आपको क्वेश्चंस गिवन हो, ठीक है, √2, √5, √2, √5, √7, √15, कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूरी की पूरी मेथड हमारे पास है। जहां पे 3 है वहां पे 2 आएगा, और जहां पे उसका स्क्वायर है वहां पे 4, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको उसको मगअप करना है, उसको समझ लो, बहुत इजी मेथड है। चलो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट्स में। तो हमें प्रूव क्या करना था कि जो √3 है वो कैसा है, इरेशनल है, वो प्रूव करना था। उसके लिए हमने क्या किया बेटा, √3 को अज्यूम किया कि वो कैसा नंबर है, सॉरी, रैशनल नंबर है। अगर वो रैशनल नंबर है तो उसको हम कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज रैशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमें पता है कि जो पी बाई क्यू फॉर्म, जो रैशनल नंबर है वो कैसे है, इंटीजर्स तो है ही अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन। और एक अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन, और हमने क्या किया, पी और क्यू में एक टर्म्स, एक कंडीशन अप्लाई कर दी। कौन सी कंडीशन अप्लाई कर दी, कि जो पी और क्यू है वो कैसे है, को प्राइम है। कैसे है, को प्राइम। को प्राइम है मतलब कॉमन फैक्टर होना चाहिए 1। सो √3 इज इक्वल, √3 कैन बी रिटन एज P अपॉन Q। ये जो स्टार वाली इक्वेशन, ये जो इक्वेशन को हमने नाम दे दिया स्टार, दैट इज द स्टार इक्वेशन। अब इन दोनों को हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला, 3 इज इक्वल्स टू P² अपॉन Q²। और ये जो Q² है हमने उसको इधर शिफ्ट कर दिया, और इसका हम एक और फॉर्म लिख सकते हैं इधर, कि Q² इज इक्वल्स टू P² अपॉन 3। मतलब ये जो 3 है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला फॉर्म। सो इसकी हेल्प से हमें क्या पता चला कि जो P है, जो 3 है वो P² को भी डिवाइड करेगा। और उसके प्रीवियस थोड़े टाइम पहले हमने समझा था थ्योरम 1.2, अगर कोई भी प्राइम नंबर, हमें पता है 3 कैसा है, प्राइम नंबर है, तो कोई भी प्राइम नंबर अगर P² को डिवाइड करेगा, या फिर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करेगा, पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा, देन the 3 will also divide that number, that is 3 divides P², then 3 divides P according to theorem 1.2। okay, so clear। यहां से अब हमने क्या किया, अजम्पशन, एक और अजम्पशन किया, कंसिडर किया कि जो P है उसको कंसिडर किया 3C। P को क्या कंसिडर किया, 3C कंसिडर किया। तो अब जो इक्वेशन 1 है, ये रही हमारी इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में हमने P की वैल्यू पुट कर दी, ये रहा, ये जो इक्वेशन है उसमें हमने P की वैल्यू पुट कर दी। तो देखो 3Q² इज इक्वल्स टू P², तो
p की जगह 3c दैट इज 3q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9c स्क्वायर। अब 3 यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया तो 9c स्क्वायर अपॉन 3, तो 3 3 जा 9, तो हमारे पास बचा क्या, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर। सो देयरफॉर हमने क्या किया, q स्क्वायर, देयरफॉर c स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन 3। सो ये जो सेकंड इक्वेशन है उसकी हेल्प से हम क्या कह सकते हैं कि जो q स्क्वायर है, ठीक है, सेकंड इक्वेशन में हम क्या कह सकते हैं, ये जो q स्क्वायर है और 3 जो है वो q स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, दैट इज स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 वी कैन से दैट अगर कोई भी प्राइम नंबर q स्क्वायर को डिवाइड करेगा सो सेम प्राइम नंबर p को भी डिवाइड करेगा। क्लियर? पर कंडीशन अप्लाइड थी को प्राइम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या पता चला कि जो p एंड q है उन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 3। जो p और q है उन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है बेटा, 3 है, राइट। ये जो कॉमन फैक्टर है क्या आया, 3 आया। अब 3 कॉमन फैक्टर आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था। क्यों कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था, बिकॉज 3 क्यों कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था, बिकॉज p एंड q आर को प्राइम। को प्राइम मतलब कॉमन फैक्टर 1। यहाँ पे अगर कॉमन फैक्टर 1 आता तो वी कैन से दैट आवर अजम्पशन इज करेक्ट, बट कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो हियर फ्रॉम दिस वी कैन से दैट आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। सो p एंड q का जो कॉमन फैक्टर है वो 3 आ रहा है, तो हमारा जो अजम्पशन है वो हमारा इनकरेक्ट प्रूव हो गया। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट 3 इज इररेशनल नंबर। क्या हो सकता है, ये जो 3 है वो इररेशनल नंबर हो सकता है। ओके, क्लियर? सो इन दिस पार्ट we have studied relationship between the LCM and HCF of two numbers, right? With the help of our formula, that is LCM of two numbers into HCF of two numbers is equals to product of two numbers. उसके बाद हमने समझा theorem 1.2, that is if any prime number, कोई भी prime number पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करेगा देन सेम प्राइम नंबर विल डिवाइड दैट नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज इफ p prime number p divides a square then that prime number p divides a. Okay, and with the help of this theorem 1.2 we have studied or we have learned about how to prove any irrational number the rational number, मतलब कि √3 √2 √5 ये सारे जो irrational numbers है हमने उसको irrational prove किया with the help of contradictory method. Okay, clear? Okay, thank you, bye.